Welcome, my dear class 10 students in maths class. And to the students, those whose parents have not allowed them to attend the offline class in the e-learning class of St. Michael's Academy. Today we have decided and select one topic that is, you can say that this topic, you can say, is very easy, and you have been studying this topic from class 7, probability. Then if you try to understand that the probability, what does the probability means, and what do you understand by the term probability? Can anyone explain? You have been studying from class 7. Probability can be defined as the possibility of an event which can. Very good. Chances of occurring an event. Chances of occurring an event. किसी भी घटना के घटित होने की जितनी भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उन सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग प्रोबेबिलिटीज कहते हैं. It is very easy to understand by day-to-day common example. Suppose you have one pair of jeans, blue color and white color, and one pair of t-shirts, yellow and white. Then how many way you can dress up? Four way. By one color of jeans, both color of t-shirt, by other. Then this is the probability, the chances of occurring by putting your dress. Okay. There are three conditions. Probability of sure event. P stands for probability. Probability of sure event, that is equal to 1. Which means, suppose I am asking you to give me an example of a person having two hands. तो सर क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर? किसी भी व्यक्ति को हम पकड़ लेंगे, उसके पास दो हाथ होता है ना? This is the example of sure event. Probability of unsure event. तब कहेंगे कोई ऐसा आम का पेड़ बताओ जिसमें अमरूद होता है. सर क्या आप अगला क्वेश्चन पे हो सकता है? या कोई ऐसे लूडो का डाइस बताओ जिसमें सत्ता होता है, अट्ठा होता है, नहीं होता ना? So this is 0, which means range of an event, range of probability of an event is equal to 0 to 1. And there is only one formula to solve any type of or any question of probability, that probability of an event is equal to required event upon total outcomes. या टोटल इवेंट ले सकते हैं, हम टोटल आउटकम्स हम यूजुअली यूज करते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज यू हैव स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी इन 7 और 8 और 9. वन क्वेश्चन यूजुअली कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. हियर गिव मी योर बुक बेटा. Two dice is thrown, or one dice is thrown twice. अगर क्वेश्चन आएगा मान लीजिए आपके पास that two dice is thrown or one dice is thrown twice, find the probability of one. Double it. Sum of digit is equal to suppose 7.
sum of digit is equal to 13 and one more sum of digit is equal to 9। इसका क्या मतलब है बच्चों? मान लीजिए आप लूडो खेलते हैं, सब कोई बच्चे भी अभी भी लूडो खेलते होंगे कभी कभी, आप तो मोबाइल में भी आ गया आपको। तो जब आप लूडो का डाइस थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर वाले सरफेस पर जो डिजिट दिखता है उसी के अनुसार हम लोग गेम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो दो डाइस को जब एक साथ ऐसे करके फेंके तो डबल हेड मतलब दोनों में एक ही डिजिट आने की संभावना। अरे वाले में अगर ऊपर में 4 दिख रहा था, दूसरे में कितना दिखना चाहिए? 4, तो उसको डबल हेड बोलते हैं। सम ऑफ द डिजिट कितना आना चाहिए? दूसरे में हमारा 7, एक में 3 आया, दूसरे में 4 आया, एक में 1 आया, दूसरे में 6 आया, ऐसे करके। तो जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा आप एक ग्राफिकल डेटा तैयार करेंगे। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस डेटा विद मी। आप क्या करोगे बच्चों? तुरंत एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। यहां 0, this is y and this is x। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। इस तरह से आप अपना ग्राफ तैयार करोगे तुरंत। This is for first dice, this is for first dice and this is for second dice। हो गया? अब यहां देखो बच्चों, पहले डाइस में हमने क्या किया? पहले डाइस से 1 आया, दूसरे डाइस से भी हमारा क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जो होगा, यहाँ जो ये एक्स एक्सिस के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है, पॉजिटिव किसके लिए होता है? तो यहाँ जितना भी होगा सबके लिए पहला डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो सब में पहले डाइस से कितना आया? 1 आया, ठीक है ना। और दूसरे से कितना हो जाएगा? मतलब हेलो। नाउ for the vertical line, the scored that the number that is appear on the surface of that dice, that is always equal to 1 and that is represented by 1। and here what about the second dice? That will be keep on changing। यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 1 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 6 हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? सब में क्या हो जाएगा बच्चों? 2। सब में क्या हो जाएगा? पहले डाइस से 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ सब में पहला डाइस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा हमारा। यह क्या हो जाएगा? 3 3 2 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6। सब में क्या हो जाएगा? 4। सब में हो जाएगा हमारा 4। ये क्या हो जाएगा? 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 and 4। फिर यहाँ सब में क्या आ जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 1 5 2 2 5 3 3 5 4 5 5 and 5 6 हो जाएगा। 6 6 6 5 6 4 6 3
3 6 2 हो जाएगा 6 1। ये आप फट से तैयार करोगे। अब देखो कितना आसान है आंसर देना। डबल है। अच्छा आप देखिए टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 6 and 6 6 is 36 फॉर कंडीशन 1 डबल एट। अब देखिए डबल एट कितना हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इसको क्या करोगे ऐसे आप इसको शेड कर दोगे या इसको कवर कर दोगे। कितने हो गए हमारे पास 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल एट कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल 1/6। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 7। तो 7 कहां से ढूंढेंगे हम देखो 5 and 2 1 and 6 7 3 and 4 4 and 3 5 and 2 6 and 1। अब इसको तो फिर हम क्या करेंगे इसको आप हाईलाइट करेंगे। तो कितने हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट कितना था 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/1/6। फिर क्या सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 13। क्यों 0 किस कैटेगरी में आया ये अनश्योर इवेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ डिजिट 13 दैट इज इक्वल टू 0/36 दैट इज इक्वल टू 0। एक और है सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। तो 9 पर हम पकड़ेंगे कहां है पहले 9 9 9 6 and 3 9 4 and 5 5 and 4 6 and 3 यही हो गया हमारे पास केवल। कितने हुए 1 2 3 4। अब यहां आएंगे हमारा सम ऑफ द डिजिट 9 कितना हमारा 4 सेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ digit 9 is equal to 4/36 that is equal to 1/9। So this chart is very important। जैसे ही इस तरह क्वेश्चन आता है कि 1 dice is thrown twice or 2 dice is thrown randomly, find the probability of the given condition। क्या करना है बच्चों तुरंत आपको please prepare this chart because this chart will be very helpful for you। Without making this chart you cannot calculate it correctly। आप करेक्ट नहीं बना सकते हैं। After this I will take one doubt more than or less than वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। That is also very interesting and one question has come from playing cards। So tomorrow I request you to bring a set of playing cards। I will explain you। ठीक है? Thank you very much। God bless you।